Hello, students. Back to our channel, Kiar Manjuana and Education. I hope you all are fine and safe and chill. Students, from today onwards, we are going to start our new unit, the first unit, because in our last lecture we had completed our bridge course. Okay, so here we have the introduction to the theme. What is the theme of this unit? The first unit. Okay, so let's get started. So first, the group of texts which are created from the author's imagination, they are called fiction. So here we have the different points of fiction and non-fiction. So kindly watch this very carefully. So fiction is not about real people or events. It is created to entertain the readers. For example, Doraemon, Harry Potter, Cinderella, Barbie. So these all are the examples of the imagination. That is not the real based story. तो जो रीडर्स को या फिर वॉचर को एंटरटेन करने के पर्पज से लिखा है तो वो सारा piece of writing है that is called fiction. The group of text, कैसे group of text which are created from the author's imagination. अगर आप लिखते हो, अपनी स्टोरी लिखते हो, अपने फ्रेंड की स्टोरी लिखते हो, सो इट्स ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन. बट इफ यू आर द कॉलम राइटर ऑफ हेल्थ, अगर हेल्थ के लिए आप कुछ ऐसा लिखते हो या फिर हिस्ट्री में से कोई ऐसा पार्ट निकाल के लिखते हो तो वो सारा होगा आपका नॉन फिक्शन. कैसे होगा? क्योंकि वैसा टेक्स्ट की जो रियलिटी और फैक्ट के हिसाब से लिखे जाते हैं तो वो होगा नॉन फिक्शन. सो नॉन फिक्शन इज अबाउट रियल पीपल और इवेंट्स. सच लोगों, जैसे लोगों का कुछ अस्तित्व था या फिर अस्तित्व है. कोई ऐसे फेक पर्सन के बारे में नहीं लिखना है. कोई ऐसे लोग कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल मोटिवेटर जो कोई है, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं. हमारे कोई ऐसे बहुत बड़े साइंटिस्ट है, पोएट है, हमारे ऑथर है, हमारी कंट्री के, अदर कंट्रीज़ के. तो इसके बारे में हम लोग जो कुछ पढ़ते हैं, हमारे गॉड जो है उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं, हिस्ट्री में जो कुछ भी आता था उसके बारे में जो कुछ भी पढ़ते हैं, ये सब है हमारा नॉन फिक्शन. बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द रियल इवेंट्स, रियल पीपल, रियलिटी एंड फैक्ट्स. So that is the difference between fiction and non-fiction. For example, newspapers, recipes and biographies. So these are the very proper examples of non-fiction. So it is created to inform or inspire readers. If we watch any inspirational video, why we watch? To inspire from the speaker. That's why we watch it, because we like it. We like to watch it. If the newspaper is there, if there is a kind of column in newspaper, it's all about the Ayurveda, and they have provided us lots of information about Ayurveda. So it's all about the reality. तो वो जो है वो फैक्ट है, तो वो होगा हमारा नॉन फिक्शन. So these are the people we will read about in this unit. So is this fiction or non fiction? हम लोग जो ये यूनिट में इसके बारे में बात करने वाले हैं तो इसके बारे में बात करने वाले हैं. सो कैन यू गेस द नेम ऑफ द यूनिट? यू हैव टू चॉइसेस, फिक्शन और नॉन फिक्शन. सो द करेक्ट आंसर इज नॉन फिक्शन. The theme of this unit is non-fiction. We will read about real people and the real events in their life. रियल लोगों के बारे में और उनके रियल इवेंट के बारे में हम लोग ये यूनिट में पढ़ने वाले हैं. सो इट्स ऑल अबाउट द नॉन फिक्शन. तो कौन कौन है? रस्किन बॉन्ड है, स्टीफन हॉकिंग है, देन मेजर, HP
अहुलुवालिया। सो देखते हैं कैसा ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट होने वाला है। अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छा अच्छा इंस्पिरेशन हमें ये यूनिट में से सीखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड। So students, now you open SB23. So first let me introduce our textbook. Our textbook is divided into various units like unit 1, 2, 3 and 4 in part 1. Okay, so we will include our textbook. So the name of the textbook is our Honeydew, एंड सप्लीमेंट्री बुक जो होती है उसका वो भी हम लोग इंक्लूड करेंगे साथ साथ में। सो हनी ड्यू, अभी तो सिर्फ हमारे पास हनी ड्यू है। सो डिपेंड्स अपॉन द नॉन फिक्शनल स्टोरीज। जो हमारी टेक्स्ट बुक में नॉन फिक्शन जो जो कुछ भी होगा वो हम लोग हमारी ये लीड के फर्स्ट यूनिट जो है नॉन फिक्शन उसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, so in this first unit from Honeydew we have unit number 2, 5, 7 and 8. You can refer your page number 4, the very introduction part of the first unit, that is non-fiction. Okay, so we will include all the parts of English, all the parts of language, English language, like speaking, listening, writing and listening। और जो कुछ भी पार्ट है वो हम लोग ग्रामर का पार्ट ये यूनिट में इंक्लूड करेंगे, पर हमारा जो यूनिट वाला पोर्शन जो है वो होगा 2, 5, 7 एंड 8। सो बिफोर वी मूव विद दैट टॉपिक्स, जो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में फिर जाएंगे अभी भी, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग that you have SB23। SB means supplementary book और उसका नाम, उसका नंबर जो है 23। वहाँ पे LUPR से स्ट्रैटेजी है। तो जो न्यू मीनिंग्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। हाउ टू फॉलो दिस, हाउ टू यूज दिस स्ट्रैटेजी, दैट वी बिफोर। ओके, तो ये भी SB23 जो पूरा है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, तो यही कहने के लिए मैंने बोला था। ओके, so let's move further. So students, here we have vocabulary words. We will not go directly for vocabulary words. So here we have Firdos Kanga. We can see that his handicap, a kind of handicap, who was born in 1960. He was an Indian writer and actor, and he lives in London. Born with brittle bones which confine him to a wheelchair. So that is not essential to have all the parts of our body very fit. If by born we don't have a fit body, then no issue. We can fit our mind. How our mind is there, that is more essential. So what is common between these two people, that we will see। हैंडीकैप्ड लोग हैं दोनों। सो दे आर बोथ डिफरेंटली एबल्ड पीपल। डिफरेंटली एबल्ड मतलब कि लेट्स रीड about the time when both of them met. Before that, let's have a look at some new words we will come across. Brittle, उसका मतलब क्या होता है? Hard but can be easily broken. The paint on the wall was brittle with age. पर मतलब कि हार्ड बहुत होता है पर इजीली हम उसे ब्रेक कर सकते, तोड़ सकते, उसे बोलते हैं ब्रीटर।
तो फिर से पीछे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं वो ब्रिटल बॉन्ड से जन्म हुआ था उसका, मतलब कि ऐसे उसके बॉन्ड्स थे जो बॉन्ड्स तो हार्ड थे पर इजीली ब्रेक भी हो सकते थे, तो ही वॉज नॉट एबल टू वॉक। देन प्रॉपल, वो वर्ब है, तो यहाँ पे हमें इंडिकेट भी किया है, एडजेक्टिव है, वर्ब क्या है वो हमने पहले भी देख लिया। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन वॉच अवर प्रीवियस वीडियोस। Propel means to have moved, drawn, or pushed something forward. That is called propel. The boat is being propelled only by oars. Patronize, to treat somebody in a way that seems friendly, but also expresses that they are not very intelligent. So that is patron. Some television programs tend to patronize children. तो कैसे ट्रीट करते हैं, टू ट्रीट समबडी, किसी को ऐसे ट्रीट करते हैं, कैसे वे में, इन अ वे दैट सिम्स फ्रेंडली, वो ऐसे दिखाते हैं कि वो बहुत फ्रेंडली है, बट ऑल्सो एक्सप्रेस, पर एक्सप्रेस क्या करते हैं, ऐसा भी एक्सप्रेस करते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ पेट्रोनाइज। So here with the help of that LUPRC strategy, here you have to draw the following table in your notebook and write down the type of clue and meaning. Okay, so here you have the words distinguish, disintegrating, dot gad, greening, and glimpse. So these all words we will cover. Okay, so let's move further. Now open your textbook and there is our seventh chapter. The name of the chapter is A Visit to Cambridge. So there is one part that is before you read. ये यूनिट शुरू करने से पहले जो रीड करना है वो पहले हम लोग देखते हैं। This is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them students. So आपको अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करनी है। Here I am not able to show it to you. Okay, so if you don't have your textbook, then listen me very carefully. Okay, let me start again from the beginning. The name of the chapter is A Visit to Cambridge. अब तो हमारा टेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, पर जो मेन टेक्स्ट है वो नहीं होगा, बिफोर यू रीड। तो इसका जो छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। तो ये जो स्टोरी है वो दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग जो है वो जब मिलते हैं उस समय की बात है। बोथ ऑफ देम डिसेबल, मतलब कि डिसेबल का मतलब क्या होता है, वी आर एबल बट अ काइंड ऑफ पर्सन हु आर नॉट एबल टू वॉक, हु आर नॉट एबल टू who are not able to do anything, like a handicap, so they are like disabled. So that is okay if the person is disabled, then it is not needed to give them that label, but they are different from others. They can do whatever we are doing in the some kind of stage, they can't do, कोई बार वो नहीं कर सकते, but it's okay, they are good in their way. तो यहाँ पे क्या है, दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की मीटिंग जब होती है वो समय की स्टोरी है। वो दोनों कैसे हैं, डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है, बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल, अलग तरीके से के लोग हैं। एज वी नाउ से, अब कैसे बोलते हैं, डिफरेंटली एबल्ड, डिसेबल्ड नहीं बोलते। पहले जो ऐसे थे लोगों,
पहले से जब लोग थे तो उसे डिसेबल्ड बोलते थे, पर उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंटली एबल्ड. स्टीफन हॉकिंग is one of the greatest scientists of our time. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer, which speaks for him in a machine like voice. So, here, two people are there. So, the first person, that is Stephen Hawking. So, who is Stephen Hawking? So, he is the one of the greatest scientist. ये लोगों के टाइम में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और वो क्या सफ़र कर रहे थे, मतलब कि कौन सी बीमारी तो नहीं बोल सकते, पर किससे वो गुजर रहे थे. ही सफ़र्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस. पैरालिसिस का नाम तो हमने बहुत सुना है. तो वो पैरालिसिस के शिकार थे. दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हीलचेयर. उसके वजह से वो व्हीलचेयर में ही थे. And allows him to speak only by punching buttons on a computer. वो कैसे बोलते थे, तो अपने कंप्यूटर में व्हीलचेयर के पास जो कंप्यूटर के बटन था वो पंच करके ही वो बोलते थे, मतलब कि कुछ बुलाना था तो वैसे ही बुलाते थे. विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक अ वॉइस, क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक. So after punching that button, if he wants to call anyone, then he punched the button. So that was his voice, like machine voice. अब दूसरा कैरेक्टर आता है. दो एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे, एक था ये स्टीफन हॉकिंग और दूसरा आता है फिरदौस कांगा. सो हियर फिरदौस कांगा इज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट who lives and works in Mumbai. Kanya was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child. Like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair. तो यहाँ पे दोनों व्हीलचेयर में थे, पर दोनों एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे, दोनों अलग तरीके के लोग थे. अपनी खुद की लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल हुए थे, लोगों के लिए बहुत अच्छा काम ऐसा किया था. तो क्या किया था, दैट वी विल सी नेक्स्ट. सो हु इज दिस फिरदौस कांगा? सो ही इज अ राइटर और जर्नलिस्ट थे ये फिरदौस कांगा, जो मुंबई में काम करते थे और रहते थे. तो वो जन्म से ही ब्रिटल बॉन्स, जो हमने पहले ही वो वर्ड देख लिया, मतलब कि जो हड्डी होते हैं हमारी बॉडी में, जो बॉन्स होते हैं वो हार्ड तो होते हैं, पर वो इजीली टूट भी सकते हैं, वैसे उसके बॉन्स थे, बाई बॉन ही थे. दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली, जब वो बच्चे थे तब से. लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हीलचेयर. तो वैसे यहाँ पे हॉकिंग के जैसे ही कांगा भी व्हीलचेयर में घूमते थे. The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair. तो यहाँ पे ये दोनों great men, this two great men, they exchange their thoughts. कौन से टॉपिक में? On what it means to live life in a wheelchair. कि व्हीलचेयर पे जीना भी क्या जीना होता है, उसकी लाइफ कैसी होती है, वो उसके जो सोच थे, विचार थे, वो शेयर किए. एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल. और जो कैसे लोग कि जो नॉर्मल लोग हैं वो ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे देखते हैं, उसके बारे में ये दोनों बातचीत कर रहे थे. तो हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे ही है. if they are different able, then also we have to give them more respect. अगर नॉर्मल को देते हैं उससे कहीं ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू मी, हमें देना चाहिए उसे कहीं ज़्यादा. तो ये था हमारा बिफोर यू रीड.
Okay, students, so I have already given those words. You have to find out the meaning, okay, with the help of LUPRC strategy. Okay, आपको गूगल नहीं करना है. Don't open your dictionary, but with the help of LUPRC, just you have to indicate, you have to show me the steps that you are following. ओके तो ये ऐसा मत सोचना कि सिर्फ 5-6 वर्ड्स ही है. नो, you have to follow all the steps of LUPRC strategy. Okay, students, so here we are going to end up our today's lecture. If you find any difficulties regarding this, you are free to ask it. Thank you, my dear all students.